بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو استقبال کرتے ہیں آپ لوگ کو ہمارا یوٹیوب چینل پہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی ایک قبر کی کہانی، جو ہے قبر کی پہلی رات۔ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں ٹاپک کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ روہیل وائس کو جاتا ہے، جنہوں نے اس پر بیان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پر اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک پہنچ سکے ویڈیو جو ان ساری چیزوں سے جانتے نہیں ہیں بیسیکلی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہوئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، چلیے آگے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ آخری شرارت۔ جب ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی۔ ایک عبرتناک سچی کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دو نوجوان کھڑے قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن بھی تھا جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی، لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ درگور ہو گئے ہوں۔ نئی زندگی شروع کرنے کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گورکھن نے قبر کی کھدائی مکمل کی اور ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا، یہ لو بیٹا، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکھن چچا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو دیا کیونکہ ان تینوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ احسن غم سے نڈھال تھا۔ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ احسن نے اس سے بلایا تو وہ جیسے چونک پڑا۔ ایک دم کہنے لگا، یار رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہمت ہے جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو خوف سے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ وہ بہت حساسیت سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل بجی اور جو ہی وائبریشن ہوئی وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ زین کی عادت تھی کہ وہ بہت شریف تھا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ کہنے لگا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد تو کرو، میں اپنا فون اٹھا لاؤں۔ یہ کہہ کر وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر احسن کی مدد سے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ دونوں راشد کی میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اس کی نظر قبر کے قریب پڑی 4 سلیبوں پر پڑی۔ وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا، احسن کیا تم یہ سلیبیں ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا ہاں، مگر کیوں؟ تب زین نے اسے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا، تم اوپر سے یہ سلیبیں رکھ دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر قبر میں کیا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اوپر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ احسن کا اس کی بات سن کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے ڈانٹنے لگا، یار تم یہاں بھی شرارت کا سوچ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے؟
कि अपने दोस्त की कब्र के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जैन ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि बस कुछ ही देर की तो बात है। एहसन ने लाख मना किया पर जैन कहां बास आने वाला था। कहने लगा, अच्छा ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगा, फिर तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। जैन के इतना मनाने पर एहसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर बैठ गया। उसके बाद एक एक करके एहसन ने सलीबें रखना शुरू कर दी। 3 सलीबें रखने के बाद एहसन जब चौथी सलीब लाया तो जैन कहने लगा, तुम्हारे ऊपर मट्टी ना डाल दूं? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो, तुम्हें इजाजत है। उसके बाद एहसन ने चौथी सलीब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा लेकर आ गए तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा, कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया, कहो तो अब उठा लूं सलीबें, लेकिन कोई जवाब न आया। उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद दोबारा मैसेज किया मगर कोई जवाब न आया। उसके बाद एहसन ने जैन को कॉल की जिस पर ऑपरेटर की आवाज आई कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अब एहसन डर गया कि कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। यह सोचकर उसने सलीबें उठाना शुरू की लेकिन उससे नहीं उठ सकी। ये वही सलीबें थीं जो कुछ वक्त पहले उसने अकेले उठाई थी मगर अब हिलने का नाम नहीं ले रही थीं। मारे खौफ कि वो घुरकन चचा की झोंपड़ी की तरफ भागा और उन्हें साथ आने को कहा। जब कब्र पर पहुंचे तो गोरखन ने पूछा, जनाजा तो नहीं आया? तब एहसन ने उन्हें सारा मामला बताया। गोरखन के बेहोश उड़ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सलीबें उठाना शुरू की लेकिन ये क्या, उन दोनों से मिलकर भी सलीबें नहीं उठी। एहसन रोने लगा। रोते रोते उसने अपने बड़े भाई को फोन किया और सब कुछ बता दिया। एहसन का बड़ा भाई जल्दी जल्दी कब्रिस्तान आ गया। उतनी देर में एहसन गम से निढाल होकर बेहोश हो गया। एहसन का बड़ा भाई कब्रिस्तान पहुंचा और उसने सारे मामले का जायजा लिया। जो कुछ गोरखन पता था उसे बता दिया। गोरखन के दिमाग में भी हजारों सवाल थे पर उस वक्त उन्होंने राशिद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। एहसन के बड़े भाई ने जैन के घर वालों को इस वाक़े से मुतला किया और अपने घर भी फोन करके बता दिया। उस वाक़े के बाद तो जैसे कोहराम मच गया। अभी तक एहसन बेहोश था। जैन के घर वालों के दिमाग में कई सवाल थे कि कहीं एहसन ने जैन को कत्ल ना कर दिया हो, लेकिन ये बातें तो तब दुरुस्त साबित होती जब उसकी कब्र को खोला जा सकता। उस पर रखी सलीबें तो 10 आदमियों से भी नहीं हिल पा रही थीं। ये तो अल्लाह के मामलात में गुस्ताखी का नतीजा लगता था। थोड़ी देर के बाद एहसन को होश आ गया और उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन है, आखिर ये सलीबें उठती क्यों नहीं? जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सबने कोशिशें की कि किसी तरह जैन की कब्र को खोला जा सके मगर कुछ मुमकिन न हो सका। यह जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़े को 1 महीना गुजर चुका था लेकिन एहसन को जैन के आखिरी अल्फाज हर वक्त याद आते थे कि यह मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। और फिर उसने एहसन को यह तक कहा था कि तुम मेरे ऊपर मट्टी डाल दो, तुम्हें इजाजत है। ये अल्फाज सोचकर वो चीख कर रोता लेकिन उसे करार न आता कि कैसे मजाक ने एक इंसान की जान ले ली और मजाक भी कब्र से। इस आखिरी मंजिल का सोचकर भी एक घर बैठे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो कैसा इंसान था कि कब्र में जिंदा उतरते हुए उसको खौफ न आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का दूसरा नाम है और अगर उसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता।
मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और आँख से खुद ब खुद मतलब आंसू बाहर आ रहे थे कि मतलब कोई कैसे ऐसे कर सकता है, वो भी कब्र के साथ, वो भी ऐसी शरारत। आप कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल बात यही है कि कब्र के लेके कोई मजाक उड़ाना, या मजाक में भी अगर कोई इंसान कह दे कि मतलब जाओ देख लेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत इंसान बोलते हैं ऐसे कि देख लेंगे बाद में जो होगा देखा जाएगा। कि क्या देखा जाएगा? मरने के बाद देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कि आपके पास जब वक्त नहीं रहेगा तब देखा जाएगा? या फिर आप क्या देखोगे जब आपके पास ज़िंदगी का नेमत जो है अल्लाह ताला छीन लेंगे, सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, तब आप देखिएगा। आप ज़िंदगी इंसान ज़िंदा रहते हुए ही सब कुछ काम करना। हम ये सोचते हैं कि हम अब कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते से कर लेंगे। क्या पता है कि आज हम सोचें कल मेरी मौत हो जाए? ये किसने देखा है? ये तो किसी ने नहीं देखा ना। और बिल्कुल भाई मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम हदीस है कि कब्र में आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके अच्छे अमाल ही काम आएंगे। आपके बुरे अमाल जो है, जैसे आप ज़िंदगी दुनिया में गुजारिएगा वैसे ही तरीके से आप मतलब आपको कब्र में वैसे रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि एक हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में जब हम लोग अगर क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद जो है हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। आपको क्या लगता है कि भाई अगर हम लोग एग्ज़ाम ना दें, ठीक है, और स्टडी भी ना करें, तो क्या आप रिज़ल्ट में एग्ज़ाम में फर्स्ट हो जाइएगा? सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं। जब आप स्कूल जाइएगा, स्टडी करिएगा, तब जाके आपको रिज़ल्ट आपका हाथ में होगा, वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरह यहाँ पर भी दुनिया में अल्लाह ताला ना हम लोग को भेजें, एक एग्जामिनेशन हॉल है हम लोग दुनिया का। हम लोग यहाँ पर ज़िंदगी भर रहने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ मुख्तसर दिन के लिए रहने के लिए आए। जो आज है कल का कोई भरोसा नहीं, कल है तो परसों का भरोसा नहीं। ऐसा है, हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारी मौत कब हो जाए। हम में से कोई नहीं जानता, मगर जी रहे हैं। ये अल्लाह की एहसान है कि अल्लाह अब तक हम लोग को ज़िंदा रखेगा, वरना तो पैदा होते ही लोग तो चले जाते हैं। और यहाँ पे ये जो कब्र के ऊपर जो बनाया है, तो यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि कब्र में जाएंगे मेरे अमाल कैसे नहीं है, वो तो कब्र में ही पता चलेगा, ठीक है। पर वहाँ पे ये सोचते हैं कि कब्र में जाएंगे 3 सवाल होंगे, उसके बाद जहन्नम और जन्नत है। पर कब्र पे जाने के बाद क्या होगा वो सारा तस्करा तो दिया हुआ है। सारा तस्करा सिरात में चलना पड़ेगा, कहाँ पे आपको क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन बिल्कुल। और वहाँ पे अगर आप जाएंगे, अगर आपका अमाल नामा अगर आपके हाथ पे दिया जाएगा, अगर आपके राइट हैंड पे दिया गया तो आपके अमाल नामा बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। अगर आपको लेफ्ट हैंड में दिया गया तो सीधे जहन्नम, कोई बात नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। तो मतलब कैसे आप मतलब कैसे दुनियावी आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं भाई? 5 वक्त की नमाज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं, अल्लाह की इबादत करना भी बहुत ज़रूरी है। किस मौत बिल्कुल सुलेमान भाई ने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि मौत का कोई ठीक नहीं है। आज मैं कहाँ हूँ, कोई कहाँ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो गुजारिश यही है आप लोग से कि नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, इबादत करें, ताकि आपका जो आखिरत है वो सवार, क्योंकि आप खुद के ज़िम्मेदार होंगे, ये कोई आपका ज़िम्मेदार नहीं होगा, है ना। और एक बात ये भी है कि नमाज तो हमने पढ़ना चाहिए। हमें से बहुत ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो ऐसे भी इबादत करते हैं जो छुप छुप के करते हैं। अल्लाह को वो इबादत भी पसंद है। ये दिखाने के लिए कि हम नमाजी हैं, ये दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तवक्कल तो है अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं करना है। हम लोग ये सबसे बड़ी बात है कि दिखाने के लिए करते हैं, दिखावे के लिए कि अगर नहीं जाएंगे लोग, अम्मी क्या कहेंगे, अब्बू कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, नमाज दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप समझिए इतनी बड़ी माह रमज़ान जो हमारा सामने से गुजर चुका, एक हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था। उस ट्रेनिंग में अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उस ट्रेनिंग में इतना नमाजी खड़े हो जाते हैं, जो बेनमाजी रहते हैं वो भी नमाज में आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं। मगर उसमें जो है इतनी भी ऐसे इंसान होते हैं जो पूरा एकदम प्रॉपर्ली खड़ा हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दिल की तलब को देखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कब्र के अज़ाब से जो ना हम लोगों से अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह हम लोग कब्र के अज़ाब से ना अल्लाह ताला बचाए। क्या है कि लिए कब्र के अज़ाब जो है ना बहुत बहुत
बहुत मतलब नाजुक है। इसके बारे में अगर उलमा अगर कहते हैं ना, उलमाओं का कहना है ये वाला कि बड़े बड़े जितनी भी उलमा हैं वो कहने हैं कब्र के अजाब से अल्लाह ताला हमें बचाएं, अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाएं, 3 सवालात से बचाएं, मन रब्बो का, मन दीनों का, मन नबियों का। ये हम लोग ज़िंदगी में रहते हुए कह देते हैं कि अल्लाह हमारे रब तो अल्लाह है, हमारे नबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दिन तो इस्लाम है। क्या हम इस 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं? अगर हम में से इल्ला माशाअल्लाह ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जो हम लोग को फॉलो करते हैं, मगर इनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग तभी कब्र में ये सवाल का जवाब कह सकेंगे जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए इस चीज़ों को फॉलो करेंगे। नबी बात ये कि ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, अल्लाह पर ईमान होना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटोकॉल पर चलना भी चाहिए और दूसरी इस्लाम के दामन को हमेशा थांक, चाहे जितने भी परेशानी क्या नबियों के साथ नहीं आई, तमाम नबियों के साथ आई तो हमारे साथ भी आएंगे। हम लोग सब्र के साथ रहना है इसमें। तो खैर अब उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। बिल्कुल मैसेज हम लोग को भी मिला है कि इतने सारी चीज़ें जानने की, एक कब्र की कहानी के ऊपर उन्होंने पूरा बयां कर दिया कि कब्र क्या है क्या नहीं है। हमें भी नहीं पता कि कब्र क्या है, वो सिर्फ वो जो जाते हैं कब्र में वो जानते हैं और वहाँ आने वाले फरिश्ते जानते हैं, और कुछ नहीं कब्र में क्या होता नहीं वो किसी को भी नहीं पता। तो यही गुजारिश करेंगे आप लोग 5 वक्त नमाज कायम करें, इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करने पे लगे रहें ताकि आपका जो कब्र के अज़ाबों को जो है आप लोग आसान फरमाएं, आपकी कब्र की जो ज़िंदगी होगी उसको आसान फरमाएं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, यही ख़त्म करते हैं। और मैसेज हमारा हमेशा यही होता है कि आप 5 वक्त नमाज कायम करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा तक आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि उन तक ये पहुँच पाए जिनको मालूमात नहीं है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। फजर गई तो नूर गया, जौहर गई तो दौलत गई, असर गई तो सेहत गई, मगरिब गई तो कामयाबी गई, ईशा गई तो सुकून गया। नमाज की अहमियत को समझो।